which is celebrated on 13th January every year. It is also celebrated to welcome the arrival of new season and making the end of the winter season. Lohri also signifies the harvesting season in Punjab. Hello everyone. Lohri is a festival that people gather one place and by lighting bonfire and singing and dancing around it. They enjoy eating good, gravy, popcorn, peanuts around the bonfire. I think Lohri is believed to be a symbol for new beginning, and Lohri also signifies the brotherhood and unity for Indian people. Thank you. Yes, hello everyone. इस लोहड़ी के पर्व पर हम लोग बोनफायर करते हैं और मैं सब उम्मीद करती हूँ कि इस बोनफायर में हमारी सारी बीमारियाँ और जितने भी हमारे दुख हैं सब इस बोनफायर के साथ जल जाए और आगे आने वाले समय में हम सभी को खुशियाँ और स्वस्थ जीवन प्रदान हो। थैंक यू। लेट्स एंजॉय लोहड़ी डांस विद अस। लोहड़ी पंजाब प्रांत का एक सबसे प्रमुख पर्व है। लोहड़ी में क्या होता है आपने यह भी जाना कि लोहड़ी में अग्निदेव के आसपास बच्चे बड़े सभी नृत्य करते हैं और उसमें मक्के और रेवड़ी इस तरीके की चीजें अग्निदेव को समर्पित करते हैं। लेकिन इस पर्व की जो मुख्य बात यह कि ये सूर्य से संबंधित है। सूर्य इस दिन उत्तरायण होता है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, इसलिए दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इस पर्व से जुड़ी एक बात ये भी है कि सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बालिकाएं थी जिन्हें एक राजा किसी को भेंट देना चाहता था, जिसे दुल्ला भट्टी नाम के एक डाकू ने उस राजा से सुरक्षित बचाकर उनका विवाह एक अच्छे परिवार में संपन्न कराया। तो इससे एक सीख यह भी मिलती है कि जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी भावनाएं प्रबल रूप से जन्म लेती है और वो भी बहुत अच्छे कर्म करते हैं। और तीसरी बात इस पर्व से जुड़ी यह है कि ये फसल से संबंधित है। इस दिन लोग ईश्वर को धन्यवाद प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार अच्छी फसल हमारे खेतों में लहराती फसल की पैदावार हुई है, इसी तरीके से आप हमेशा ये फसल हमें प्रदान करते रहें और धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी को लोहड़ी पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी। Welcome and celebrate the Pongal. So let us all join our hands to pray for happiness and glory in our lives. May this harvest festival fill our lives with joy and prosperity. Happy Pongal to you and your family. May the sweetness of the overflowing milk and sugarcane fill your life with happiness and prosperity. So wish you a very happy Pongal to you all. Anaya Varukam Vartikam. Thank you.
So it is written in the history that this festival has been started by the Chola king Kuluthamba somewhere in 170 CE. This harvest festival has been celebrated by granted too many land by the king for the temples. This harvest festival is celebrating for 4 days, and the first day has been started on 30th January. Pongal is a 4-day festival celebrated in the state of Tamil Nadu. It is celebrated to thank the sun god and Lord Indra for helping the farmers to grow and yield better crops throughout the year. A special dish called Pongal is prepared on this day and offered to the sun god in the morning and served in banana leaves. Served on the banana leaves to the family members. Happy Pongals, may this Pongal fulfill your life with sweetness. Everyone, as you all got to know the lot many things regarding the celebration, here I just want to tell you about what you learned after the Pongal celebration. On the very first day, that is Bhogi, we learned 2 things: let go. It means people lit fire and discard all old habits and things which are useless. Second day, that is Pongal, which tells us look ahead or kickstart new projects and assignments because there is ample space for innovation. On the very third day, that is Mattu Pongal, teaches us to live in harmony with various relationships. And on the very last day, which is called as Kannum Pongal, which tells us to learn how to celebrate new things. So, lastly, I would like to greet you one and all a very happy and prosperous Pongal. तो बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही हम अपने अन्नदाता किसानों को रिस्पेक्ट दें। उनके बनाए हुए अनाज को व्यर्थ न करें, थाली में उतना ही लें जितना कि हम खा पाए। यही सारे बच्चों से अनुरोध है कि अपनी माँ के द्वारा परोसा गया थाली का जितना भी भोजन है उसको पूर्णतः स्वाद के साथ खाएं और उसका सम्मान करें और खाने को व्यर्थ ना करें। अपनी थाली में उतना ही लें जितना आप खा पाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी थाली का भोजन पूर्ण खत्म करें। सूर्य देवता का, इंद्र देवता का और हमारे अन्य देवता और फार्मर्स यानी कि हमारे किसान का सम्मान करें और इस दिन की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी पोंगल टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल। एंड आई वेलकम वाइट। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। भारत एक देश पर प्राण अनेक, भावनाएं सबकी एक पर भाषाएं अनेक, ईश्वर है एक पर प्रार्थनाएं अनेक, उसी प्रकार तैयारियां हैं एक पर पर्वों के नाम है अनेक। तो आज हम सब मकर संक्रांति पर्व के बारे में जानेंगे कि पर्वों का देश भारत, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहता है। वो उद्देश्य है एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी सकारात्मकता का प्रचार एवं प्रसार। तो आज हम मकर संक्रांति पर्व कब, क्यों और कैसे मनाते हैं ये जानेंगे। मकर संक्रांति जैसा कि इसके नाम में ही निहित है, मकर, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और इस त्योहार को उत्तर भारत में मकर संक्रांति और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत के अनुसार आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था, इसीलिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आपको पता है सुबह सुबह संक्रांति के दिन
आपकी मम्मा बोलती होगी जल्दी नहा लो, जल्दी नहा लो। आज मकर संक्रांति को जल्दी नहाने का और स्नान करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आज के ही दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था और आज के ही दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में विलीन हुई थी। आज के दिन उज्जैन, शिप्रा, हरिद्वार आदि जगह पे भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और सूरज का पूजा करते हैं। और बच्चों, जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको गंगा स्नान का कितना महत्व है, तो आज के ही दिन प्रयागराज में एक माह का मेला लगता है जिसे हम माघ मेला कहते हैं। और यह मेला आज से लेकर शिवरात्रि तक चलता है। और साथ में बच्चों आपको पता है इस मेले का महत्व तो है ही, साथ में आज के दिन बच्चे पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। आप सब देख रहे हैं यहाँ कितने सारे पतंग लगे, तो इस त्यौहार को पतंगों का भी त्यौहार कहा जाता है और पतंगे उड़ाई जाती हैं। एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, इस फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस फेस्टिवल को दान के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से बिहार में इस फेस्टिवल को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन किसी भी नाम से मनाया जाए किसी भी स्टेट में, बट इस दिन सबसे ज़्यादा महत्व दान का होता है। और इस दिन लोग खिचड़ी, चावल, तिल के लड्डू आदि चीज़ों का दान करते हैं। और बहुत से लोग अपनी इच्छा अनुसार इस दिन 14 चीज़ों का दान करते हैं। 14 लोग। तो बच्चों, आज आप सबने जाना कि मकर संक्रांति पर्व का महत्व, उसकी महत्व, दान का महत्व और सबसे प्रमुख बात, आपने अपने घरों में भी देखा होगा इस चीज़ को कि किस प्रकार से हम सबकी मम्मियाँ, हमारे घर की जो बड़े होते हैं दादी नानी, मंगोड़े बनाती हैं तरह तरह की चीज़ें, तिल के लड्डू, और एक दूसरे को हम लोग उसको खिलाते हैं और उसको प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और है, वो ये है कि जो ये पतंग का महत्व है, पतंग मात्र ही नहीं उड़ाने के लिए, पतंग तो उड़ाएंगे आपको अच्छा लगता है, लेकिन पतंग किस चीज़ का प्रतीक है? आज़ादी का, प्रसन्नता का, खुशी का। तो हम सब पतंग उड़ाकर इस पर्व का अंत करते हैं, शाम के समय पतंग उड़ाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ ही आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।